हेलो डियर फ्रेंड्स, मैथ्स के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा ये पहला लेक्चर है। चैप्टर नंबर 1 से हम मैथमेटिक्स में स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, सेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट? दोस्तों, set is well defined collection of objects, members or elements। well defined मतलब हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, रिवर्स ऑफ इंडिया, वोवेल्स इन अल्फाबेट, वेल डिफाइंड। यू अंडरस्टैंड? अब यहां पर सेट को रिप्रेजेंट करने में सेट्स आर रिप्रेजेंटेड और डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स ए, बी, सी, एक्स, Y, Z, etc. letters, and all the elements or the member of set can be represented by small letters A, B, C, etc. If A is member or element of set A, then we can write A belongs to A. This is the Greek symbol, Greek letter known as epsilon. A belongs to A. If B is not element of set A, यदि B set A में नहीं है, तो we can write B not belongs to A। सेट के अंदर में सब्सटेंस मेंबर्स को बताने के लिए हम इस सिंबल का यूज कर रहे हैं। यदि मेंबर है तो बिलोंग टू, और नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, ऐसा हम कहेंगे। क्लियर दोस्तों? ये बात हो रही है सेट और मेंबर के बीच। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो स्मॉल ए which is the member of set A, but B is not a member or the element of set A। दूसरी बात, we have different kind of sets in mathematics like as n। n is set of all natural number। it is the set of natural numbers। Natural numbers means 1, 2, 3, 4 like that। Z is the set of integers, all integers। All integers may be positive or negative, zero also। Q set of rational numbers, and R is the set of real numbers। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ सेट्स है। C भी है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हम बाद में पढ़ेंगे। इट्स अ इमेजिनरी सेट, लेकिन फिर भी यहां पर ये ध्यान देना है N, Z, Q, R इतने ही सेट ज्यादातर यूज होते हैं। यदि हम लेते हैं Z प्लस, मान लीजिए हम लिख रहे हैं Z प्लस, तो क्या मतलब होगा? सेट ऑफ ओनली ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ये होगा। दोस्तों, देयर आर टू मेथड्स फॉर द रिप्रेजेंटेटिंग ऑफ सेट। वन इज रोस्टर और टेबुलर मेथड। In
method all the elements are listed, मतलब हमें एलिमेंट्स का लिस्ट बनाना होता है। दूसरी बात यहां पर क्या है, ऑल एलिमेंट्स और द मेंबर्स आर लिस्टेड। All the elements and listed elements are enclosed with curly bracket. Order is not important in this method, and must thing is that all the elements are separated by commas. One element should be only one times, not repeated. For example, set of natural number, तो 1, 2, 3, 4, 5 and so many. तो देखिए कर्ली ब्रैकेट में लिखा है all the elements are separated by commas. हमने 1 लिखा है, फिर बाद में तो पहले 2 लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं. Order is not important in this case. And the second one, set builder form. In the set builder form, all the elements are represented by common property. By common property. For example, बात कर रहे हैं सेट की, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो किस तरह से हम लिख सकते हैं, मान लीजिए। और दूसरी बात है, यदि हम लिखना चाहते हैं एलिमेंट्स हैं 3, 9, 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो मेनी, मान लीजिए ऑल द इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ 3. See, x is integer multiple of 3. तो दोस्तों कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी, इस तरह भी लिख सकते हैं, या तो फिर x is equal to 3n where n belongs to n. This is the common property. अब यहां पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए हम n is equal to 1 लेते हैं, तो 1 into 3 is 3. मान लीजिए n is equal to 2 लेते हैं, क्योंकि n belongs to from natural number, तो यहां पर हमें 2 लेना है, तो 2 into 3 which is 6. तो ये एलिमेंट्स को हम कोई कॉमन प्रॉपर्टी द्वारा जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह से हम बता सकते हैं x where x is equal to 3n where n belongs to n. तो इस तरह से there are two methods for representing of set. One is roster or the tabular form, and the second is set builder form. So let us study with some examples. Illustration number 1 है, ध्यान दीजिए दोस्तों, illustration number 1. And what is it? Illustration number 1, दोस्तों, solution of the set of equation. Find the solution set of equation x square plus x minus 2 is equal to 0 in roster form. हमें रोस्टर फॉर्म में ये लिखना है, तो सबसे पहले इसे हम सॉल्व करेंगे, तो x square plus 2x minus x minus 2 is equal to 0. X is common from both of them, remaining is x plus 2 minus 1 common. X plus 2 is equal to 0. We have x plus 2 and x minus 1 is equal to 0. X plus 2 is equal to 0 or x minus 1 is equal to 0. Therefore x is equal to minus 2 or x is equal to 1. हमारे पास में दो सॉल्यूशन है, या तो x1 है या तो x minus 2 है. But in roster form we represent all the members in listed. So set is represented by this way, minus 2,
1 ऐसा बता सकते हैं, या तो फिर 1, -2 भी लिख सकते हैं। समझ गए दोस्तों। एक और एग्जांपल लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 2 x, ध्यान दीजिए दोस्तों, कंसीडर एनी सेट x where x is positive integer and also x square is less than 40, represent it in roster form। तो दोस्तों यहां पर से हमें ये जानना है कि पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1, 2, 3 से, और दूसरी बात ऐसा इंटीजर लेना है कि जिसका स्क्वायर 40 से लेस हो। सपोज 1 नंबर कंसीडर करते हैं तो स्क्वायर ऑफ 1 is 1 which is less than 40, so 1 is the member of this set। 2 स्क्वायर for less than 40 है, तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, 6 भी आ सकता है, क्योंकि 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। लेकिन जब 7 लेंगे तो 7 का जो स्क्वायर होगा वो 40 से ज्यादा है, तो 7 के बाद में कोई वैल्यू नहीं आ सकती है। सो आंसर इज सेट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इस तरह से हम ये रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3, ध्यान दीजिए दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 3 यहां पर क्या है? लेट एनी सेट ए बी 1, 4, 9, 16, 25 and so on, represent this set in set builder form। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम इसी तरह भी लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों किस तरह लिख सकते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट बाय कॉमन प्रॉपर्टी, तो x where x is equal to n square and n belongs to capital N, ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी टेक n is equal to 1, so here we have n square मतलब 1 square means 1। if we take n is equal to 2, तो यहां पर हम लेंगे 4, 9, 16, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा भी क्या लिख सकते हैं? x where, यहां पर देखिए x इज पॉजिटिव, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर ऑफ x इज स्क्वायर ऑफ इंटीजर, ये भी हम लिख सकते हैं x इज स्क्वायर ऑफ इंटीजर। दोस्तों स्क्वायर ऑफ इंटीजर मतलब माइनस का भी स्क्वायर पॉजिटिव है और प्लस का भी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही है, तो इससे बेटर ये होगा कि ये भी बिल्कुल राइट ही है, तो हम दोनों तरीकों से सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो इस वीडियो में यहां तक रखते हैं, तो आपको थोड़ी सी सेट के बारे में समझ में आ गई होगी बात। दूसरे क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक यहां तक आप टेक्स्ट बुक में भी स्टडी करें और खुद को इम्प्रूव करें। थैंक यू।